is up and welcome back to the channel everyone. There are the two beauties resting but not in peace. So that is my 2016 KTM RC 390 and this is a so-called 2005 Avenger, but it doesn't seems like, because there are a lot of mods or transformation you can say I've done on the bike. So today's video is gonna be upon this beast, but then lately I was just scrolling my news feeds and that is where I found that there is going to be a major change, or there's going to be a new KTM RC in town as they are spy testing it. लेकिन फ्रेंकली बोलूँ तो भाई वो इमेज अभी मैं पुट कोई ख़ास पसंद नहीं आई मेरे को, जो 2020 और मे बी 2022 का मॉडल जो आने वाला है अब फॉर द RC. इट इज़ नॉट दैट अपीलिंग, यू नो, डजंट गिव्स दैट फील. और ये जो रॉ फीलिंग है RC में, वो शायद नई RC में नहीं होगी बिकॉज लाइक आई सेड व्हेन आई हैव ड्रिवन द 2021 RC, इसका जो पंच है वो मुझे इसमें बिल्कुल नहीं लगा. हाँ, देयर आर सम काइंड ऑफ निगल्स इन दिस बाइक बट देन स्टिल everything is worth, because after owning this it's quite reliable. It's very like used to bike, but the only thing is it heats up a lot. और बूसा के जैसे नहीं हीट होती है, नहीं, लेकिन फिर भी इट हीट्स अप अ लॉट. बट स्टिल मैन, आई लव माई RC. एंड इसका नाम तो मैंने रखा है माया. तो दिस इज़ माया, बट स्टिल थोड़ी सी गंदी तो हुई है यार. बट नाउ दे हैव डन द सेम थिंग एज दे हैव डन विद द बूसा, द 2021 और 22 सो कॉल्ड बूसा. तो वो लोग ने पूरा वो इलेक्ट्रॉनिक्स भर के, एंड दैट इवन हैज़ अ यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स इन विच इट सेज दैट क्लीन द बाइक, तो वो भी दिखता है उसमें. एंड दैट इज़ काइंड ऑफ थिंग. इट्स फुल ऑन विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इट हैज़ ट्रैक्शन कंट्रोल एंड वॉट नॉट इट हैज़. बट वो एक बात मैं सुजुकी का जो डिज़ाइनर है जो भी, so to him I'm going to say this, bro, you have taken out all that raw feeling in that Busa, and वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स भर के पूरा ख़राब कर दिए तुमने गाड़ी. और जो फेयरिंग है और जो बाइक का एरोडाइनमिक्स है, द लुक ऑफ द ओल्ड Busa is not going to match up what you have made now. So apparently that is not so appealing अगर मैं बोलूँ तो, because a big fan of Busa, all time favorite. आप मेरे को चाहे मेरे को क्रूज़ दे दो, मेरे को शिप दे दो, एंड विद अ बूसा आई टेक अ बूसा फॉर दैट. एंड मोस्ट प्रॉब्ली टिल द 2020 मॉडल, 2005 टू 2020 और 2003 वॉट एवर, मतलब जो सेकेंड जेन और फर्स्ट जेन जो बूसा है, थर्ड जेन इज़ नेवर गोना मैच द फीलिंग दैट द सेकेंड जेन गिव्स. लेट इट बी गाइस, बट still have to say this, so I can keep talking about the Busa day and day along. But the topic of the video is not that. The topic of the video is this. This is my Avenger. I've been riding it for a while, and I have modded it, or you can say I have transformed it into something that is not what you see on most of Avenger. So let's begin with the mods. So this is the tank that I have changed it. और पहले जो बाइक का टैंक था, दैट हैड अ काइंड ऑफ स्मॉल इशू, बिकॉज एज यू नो मुंबई में बाइक चलती है, मुंबई में, पूना में, तो इट्स सॉर्ट ऑफ रस्टी फ्रॉम द इनसाइड. तो बिकॉज इट वॉज गेटिंग रस्टी, आई चेंज द होल टैंक. दिस इज़ अराउंड लाइक 3,500 और 4,000 bucks समथिंग. एंड अ स्मॉल डिटेल ऑन दिस इज़ कि इसका जो ये जो क्लस्टर है, दैट क्लस्टर इज़ ऑल्सो बीइंग चेंज, बिकॉज the 2005 model had like 3 buttons over here or 3 lights over here, and one used to show high beam, low beam. In the middle there was neutral, and there was something at the side for the passing lights, or maybe the side lights, what you say. तो वो होता था, लेकिन now I have changed it to this, or this thing even works. Let me show you.
अगर चालू किए तो ऐसा न्यूट्रल आता है, देन बैटरी इट शोज एंड रेस्ट यू सी. तो आई इवन made it more appealing, planning all the stickers here and somewhat that I love for my bike. और even RC के लिए भी I am going to wrap it, I am going to make it even better maybe. So yeah, let's continue. तो ये तो हो गया टैंक की बात. After that the thing you see here is the handlebar. Now I had 3 types of handlebars specially for this bike. The first one was a big ass handlebar as that of a Harley. If you have seen my previous videos, तो उसमें आपको दिखेगा that handlebar was a aftermarket handlebar, and after that I have swapped it with the FZ's handlebar because that was more comfortable than before, and now it has a KTM Duke 200 handlebar, and that is very for like फ्रॉम मुंबई टू पूना आई हैव डन, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से अपन घूम नहीं पाए ज़्यादा. तो ये हैंडल लगाने के बाद से अपन ने एक ही राइड मारी है, जो दैट वाज फ्रॉम पूना टू मुंबई, एंड बिलीव मी दिस इज़ वेरी रिलैक्सिंग एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल. एंड आफ्टर दैट मिरर्स का तो मेरे पास आप बोल सकते हो कि कलेक्शन हो गया था मेरे पास मिरर्स का, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स दैट आई हैव माउंटेड ऑन दिस बाइक, जो हैंडल के साथ में कलर के साथ में जो मैच होता था. नाउ आई हैव दिस काइंड ऑफ राउंडिश एंड रेट्रो लुकिंग मिरर्स ऑन द बाइक, एंड इट मैचेस द ओवरऑल एम्बियंस ऑफ द बाइक वेरी प्रॉपरली. तो आप कह सकते हो कि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट. और पूना में और मुंबई में शायद अभी ये रूल निकल गया है कि इफ़ यू डोंट हैव योर मिरर्स so you could be fined, and that is important. You should ride your bike with the side mirrors, and that is very important, or especially if you are riding it in Mumbai, you need it. So after that, if you know, the 2005 model doesn't used to have this kill switch over here, and that is working. So bike में अगर आप खोल के तो मैं दिखा नहीं सकता, because I don't have all that spanners and all. So बाइक में जो है पूरा वायरिंग इट्स ऑफ न्यू एवेंजर, तो पूरा वायरिंग चेंज किया हुआ है, बिकॉज द ओल्ड वायरिंग वॉज काइंड ऑफ शिटी. लाइक आई सेड इट वॉज अ 2005 मॉडल, तो तब से वायरिंग उसका वही चल रहा था, एंड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क हैड बीन हैपेंड बिफोर फॉर दिस बाइक ऑन दिस बाइक, एंड दैट इज़ वाई आई हैड टू चेंज इट ओवरऑल. तो मैंने वायरिंग भी चेंज कर दी, एंड विद दैट वायरिंग कम्स दिस किल स्विच. तो ये किल स्विच है, दैट इज़ अ वर्किंग किल स्विच. आई विल शो यू इन अ बिट. तो ये भी मैंने एक, यू कैन से व्हाट यू डोंट गेट इन अ 2005 मॉडल, तो ये मैंने किया है, एंड दैट वर्क्स प्रॉपरली. सो आफ्टर दैट इफ़ यू कम हियर, दिस इज़ द हेडलैम्प असेंबली, और आप शाइन देख सकते हो, बिकॉज दिस इज़ द ओरिजिनल हेडलैम्प असेंबली ऑफ फ्रॉम लूमेक्स. ये जो कंपनी है जो बनाती है, तो उससे मैंने ओरिजिनली आई बाइड इट. तो दिस इज़ नॉट अ कॉपी और रेप्लिका ऑफ इट, इट्स अ ओरिजिनल वन. और ये पूरा सेट जो है मैंने मतलब मंगा के मैंने इसको बेटा, बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग इट, तो आई गॉट इट बाय गॉड ग्रेस ऑफ गॉड. आई गॉट इट एंड आई फिटेड इट हियर. तो इट लुक्स काइंड ऑफ मेस्मराइजिंग, क्योंकि पहले का जो हेडलैम्प था दैट हैड काइंड ऑफ स्क्रैचेस एंड ऑल, तो मैंने फिर ये बाद में जाके चेंज किया. आफ्टर दैट दिस इज़ अ हैंड क्राफ्टेड यू कैन से मड गार्ड फॉर माई बाइक, एंड ये मैंने खुद ही किया है, हैंड क्राफ्टेड. तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इट लुक्स काइंड ऑफ अपीलिंग फॉर द बाइक, क्योंकि पहले का जो इसका मड गार्ड आता था दैट इज़ लाइक सो फकिंग बिग. तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा काट छूट के थोड़ा छोटा कर दिया है, and that seems kind of appealing to the bike. Shocks are the same, the suspension setup is the same. I was even going to change it with the RC suspension system, but then I get to know कि उसका जो oil seal है वो बहुत जल्दी if the steering geometry changes तो उसका oil seal भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है. तो मैंने I didn't swap it, I kept it as it is. But here if you see, ये जो रोटर है अंदर का दैट इज़ न्यू. इसको हार्डली एक 1.5 साल हुआ है मेरे को चेंज करके. द रोटर हैज़ बीन चेंज एंड रेस्ट इज़ लाइक ओरिजिनल एज इट हैज़ केम फ्रॉम द बाइक.
तो वैसा ही है, बट आई हैव चेंज द रोटर. डिस्क ब्रेक्स हैव बीन रिसेंटली चेंज, तो डिस्क पैड भी नए हैं. आफ्टर दैट द टायर, इफ़ यू सी हियर, दिस इज़ समथिंग दैट फिट्स इन अ पल्सर 150 फॉर द रियर. मतलब जो पीछे जो रबर लगता है वो मैंने आगे डाल दिया है, तो बिठाने में मेरे को थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई, बट ट्रस्ट मी, इसका जो रोड के साथ में जो ग्रिप पकड़ के चलता है, दैट इज़ अमेजिंग अमेजिंग. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मॉड. इवन अगर पीछे आप लोग देखोगे तो हियर इफ़ यू सी, दिस इज़ अ रैल्को स्पीड ब्लेजर एंड आई हैव ऑर्डर्ड फॉर दिस स्पेशली. तो ये मेरे को मिल नहीं रहा था. अगर इफ़ यू ट्राई टू स्वैप इट विथ सम अदर बिग टायर्स, तो आपको शायद ये जो स्विंग आर्म है, यू हैव टू चेंज द स्विंग आर्म, यू हैव टू चेंज द ब्रेक्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग. तो जो ये रिम में बैठे, मैंने वैसा ही स्पेसिफिक टायर मैंने मंगाया है. तो दिस इज़ 140/90 15 इंचेस एंड वेरी वेल फॉर दी ऑफ रोड एंड ऑन रोड बोथ. क्योंकि इफ़ यू नो, अगर हार्ड कोर ऑफ रोड टायर होगा तो वो आपको ऑन रोड ज़्यादा यू नो डजंट फील्स दैट गुड ऑन रोड. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेमी ऑफ रोड टायर, बट काफ़ी बड़े हैं इसके, जो आप बोल सकते हो, ब्लॉक्स. तो दैट्स अबाउट द टायर्स. नाउ कमिंग ऑन टू द सस्पेंशन. तो सस्पेंशन, पहले आई वॉज with the original suspension setup for the rear that comes with the Avenger, but उसके बाद मैंने उसको in like 2014 or 13 में भी, so I swapped it with the endurance का जो higher end bikes like the 350 Thunderbird. तो वो सस्पेंशन सेटअप मैंने इस पे डाला था. तो रोड्स वर नॉट दैट काइंड ऑफ ओके लाइक इट इज़ इन मुंबई. तो छोटे मोटे पॉटहोल्स चलते हैं, बट भाई उधर तो गड्ढे थे, तो उसके लिए अपन को पूरा ज्योमेट्री चेंज करना पड़ा. एंड दैट इज़ व्हेन आई स्वैप्ड इट आउट विद द एंड्योरेंस सस्पेंशन सिस्टम फॉर द रियर. तो दैट वर्कड आउट वेल फॉर सम टाइम, बट आफ्टर दैट फिर मैंने सोचा कि यार बाइक का पीछे साइड भी बहुत बढ़ गया है, एंड दैट वाज नॉट लुकिंग दैट इफेक्टिव, यू नो. सो this is the new Avengers suspension system that you see here. It's totally black. It's from the Cruise 220. तो ये वही नया सस्पेंशन है. तो अगेन मैंने ये बाद में वापस जो ओरिजिनल सस्पेंशन था नया बाइक का, वो मैंने नया लेके डाला है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सस्पेंशन ऑफ द रियर. अगर आप देखोगे, सो दिस इज़ द थिंग दैट क्रैकल्स एंड पॉप्स लाइक एनीथिंग. This is the exhaust system with the cat. It has cat, but sort of it doesn't, क्योंकि now I don't want to go in deep, but this thing is throaty and it's deep. So चलाते हुए बाइक का जो मज़ा है वो अलग ही लेवल पे है भाई. मतलब मैं बोल नहीं सकता. if you ride it you will believe it, क्योंकि this thing crackles and pops like anything. So that is again an exhaust change you can say. So if you come here you see the LEDs. तो पहले मैं यूज़ करता था ड्यूक का, KTM ड्यूक का LEDs. I had spent it before, but वो ख़राब हो गया. तो after that I had changed it with the aftermarket LEDs, and these are pretty well. I'll just on it and show you. So if you see, kind of oranges, and it feels like something is passing by. तो ऐसा फील आता है. एंड क्वालिटी ठीक ठाक है इसका. आई वोंट से इतना अच्छा है, बट ठीक ठाक है. सो आफ्टर दैट इफ यू कम ओवर हियर एट द रेयर, मैं पहले बाइक बंद कर लूँ. सो आफ्टर दैट इफ यू कम ओवर हियर, दिस इज़ अ क्लॉथ आई यूज टू क्लीन माई बाइक. So this is a rare mudguard of, it's not from Bajaj. I have ordered it online on eBay, और ये this is kind of an import you can say. मतलब I have ordered it from all the way from China or something. तो भाई ये मतलब ये चीज़, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, ये चीज़ जो है दिस नॉट फॉर माई एवेंजर, इट्स फॉर हार्ली.
तो हार्ले का पार्ट भी इसमें लगा हुआ है। एंड ये जो मडगार्ड है ये बैठ नहीं रहा था, तो हम लोग ने उसको वी हैव गिवन इट सम एडजस्टमेंट एंड वी हैव फिट इन इट। तो दिस काइंड ऑफ लुक्स कूल ऑन द ओवरऑल लुक ऑफ द बाइक, तो अच्छी दिखती है। आफ्टर दैट इफ यू सी ओवर हियर, so this is a handmade you can say single sided mud flap। जो mud flap जो है that is from the Pulsar 200 NS और RS में भी। तो ये मैंने खाली इतना पोर्शन आई बाइट एंड आफ्टर दैट मैंने इसको खुद कट किया है इन अ वे दैट इट मैचेस और इट लुक्स काइंड ऑफ डिफरेंट। तो ये खुद हम लोग ने बनाया। दिस सेटअप इज़ एक्चुअली इट वाज बिफोर अ मिरर सेटअप, तो वो हम लोग ने कट करके यहाँ पे वेल्ड किया। एंड दिस इज़ लाइक अ नट एंड बोल्ट फिटमेंट, तो आप इसको निकाल भी सकते हो, वापस लगा भी सकते हो। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ वर्क आई हैव डन बिकॉज मैन बाइकिंग वॉज लाइक इट्स फॉर मी it's relaxing, it's like something I can't explain you guys. So that is what biking is all for me, and that is why this beast that is sitting there alongside my Avenger. तो उसके बाद if here you see insulation for the you can say down pipe, तो वो भी हम लोग ने this is a recent mod that I have done. और आफ्टर दैट इफ़ यू सी ओवर हियर, तो ये पूरा सेटअप इज़ ऑफ द न्यू एवेंजर। ये पूरा सेटअप नए एवेंजर का है। ये भी फॉर द ब्रेक्स एंड फॉर द गियर एज वेल। तो गियर का साइड भी मैंने पूरा चेंज किया हुआ है एंड दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ न्यू थिंग। तो ये नए एवेंजर का मैंने लेके इसको डाल दिया है एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। तो इफ यू कम ओवर हियर एट द बैक, तो बैक का भी जो आप बोल सकते हो फुटरेस्ट है, वो भी इट्स काइंड ऑफ फ्रॉम द न्यू एवेंजर। तो ये साइड का भी चेंज किया हुआ है और ये भी साइड का चेंज किया हुआ है। द सीट इज़ लाइक आई सेड अ सिंगल सीटर, बट 2 पीपल्स कैन परफेक्टली फिट ऑन इट। एंड बाद में ये देयर इज समथिंग आई वेल्डेड, तो बिकॉज बहुत खाली खाली लग रही थी एंड माई डैड वॉज लाइक नहीं भाई तू पीछे कुछ लगा ले, बिकॉज अगर यहाँ से कोई गिरा तो वो टायर के साथ में सीधा बाहर आ जाएगा। सो दैट इज़ वेयर आई हैव डन दिस। सो दैट इज़ एन ओवरऑल काइंड ऑफ वर्क आई हैव डन ऑन माई बाइक, ऑन माई एवेंजर। सो दिस बाइक इज़ गोना गो ऑन सेल, और लाइक आई सेड दिस इज़ ऑन सेल नाउ। तो भाई लोग मतलब ऐसे कि आई डोंट नो व्हाई, बट पीपल कॉल मी एंड दे से लाइक कि यार अभी आई डोंट वांट टू टेल यू द अमाउंट दे से, बट बहुत ही चीप काइंड ऑफ प्राइस दे आस्क मी टू टेक माई बाइक फॉर। और इतना खर्चा करके अगर मैं इतना चीप में बेचूंगा तो फिर सी इफ़ यू रिस्पेक्ट अ राइडर यू शुड ऑल्सो ट्रस्ट हिम, बिकॉज इतना सारा काम अगर 2005 की किसी भी एवेंजर में हुआ है काइंड ऑफ गिविंग इट दैट काइंड ऑफ अटेंशन, तो आई ऑलरेडी हैव द RC लाइक आई सेड। तो इसके ऊपर मेरा अटेंशन इतना नहीं रहता है। ये मोस्टली मेरे जो काइंड ऑफ पार्क, इट्स जस्ट पार्क एंड नोबडी जस्ट। तो पहले एवरी काइंड ऑफ वीक आई यूज्ड टू वॉश इट, एवरी संडे आई यूज्ड टू वॉश इट, आई यूज्ड टू पैम्पर इट। लेकिन अभी अपना वो थोड़ा सा कम हो गया है बिकॉज दैट इज़ ग्रैबिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन इवन माइंड। तो ये एक अंदर से मेरे को फीलिंग आया कि इफ़ आई एम नॉट एबल टू pamper it, so I'm not able to ride it. And cruiser specifically is not my kind of style of riding. I love super sport and that is why I brought that beast that is standing over there. तो भाई वीडियो मैंने खास इसी के लिए बनाया है कि भाई अगर कोई भी पूछे कि क्या क्या है कि चाबी ऑन किए, so the keys are on, it says neutral, अगर आपको दिख रहा होगा, and the kill switch is on and let's give it the beans.
सो दिस इज़ द साउंड ऑफ द बाइक. एक छोटा सा क्लिप भी मैं डाल दूँगा आखिर में, justifying the voice. This was all about my lovely, my so loved Avenger, a 2005 one, but which doesn't seems to be like. और अगर एक चीज़ मैं भूल गया तो that is the mobile charger. तो ये शायद मैं निकालूँगा. I'll just remove this from my Avenger and I'll swap it on my dad's bike because he badly needs it. क्योंकि रख के फ़ायदा नहीं है, तो आई एम गोना चेंज इट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई एवेंजर एंड होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. और हाँ भाई, इस वीडियो के बाद अगर आप लोग बाइक की प्राइसिंग के बारे में मेरे से बहस करने वाले हो तो जस्ट गो आउट थ्रू द वीडियो, प्रॉपरली देखो वीडियो में मैंने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या नहीं किए हैं. देयर आर टन ऑफ चेंजेस आई हैव डन. अभी भी छुट मुट काम है जो मैं करने वाला था. लाइक आई वॉज गोइंग टू विनल रैप दिस थिंग बट देन आई सडनली बाइट दी RC. तो टिल देन राइड सेफ और ओवर स्पीडिंग मत करना सिटी में. और क्या बोल सकता हूँ. वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर से शेयर करना. इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस बीस्ट ऑफ माइन, just comment down below your phone number or maybe I'll call you personally. So till then, stay safe and ride safe from here. Goodbye.